Hi, so what we are doing is we are doing a pre-board question of ICSE 24, and this is question paper which is from one of the reputed schools of Navi Mumbai, and I found this quite interesting. So here it's on the same pattern as the board one, and you have section A and section B. Okay, so I think this could be a good practice paper for you guys. So we will go through objective ones first and then we'll do all of the other sections. तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है if the ratio of corresponding sides of two similar triangles is 2:3, then the ratio of their corresponding altitudes is what? So this is the question. Now we know that in case of similar triangles, what happens is area 1 by area 2 will be equal to square of the arms. Okay, so say x1 and x2 are the arms, so this will be whole square. Now we know that area 1 is going to be half into altitude 1. Okay, let's say altitude we are writing with h1, okay, into the arm, okay, which is x1 divided by half into h2 by x2. That is the area of a triangle, half into base into height, right? And that is equal to x1 by x2 whole square, right? So half adjust with half. और देखिए आपका x1 x2 इधर भी x1 x2 इधर भी है, तो h1 by h2 क्या हो गया? x1 by x2 ही हो गया, which is equal to 2/3. So the answer is 2/3. दूसरा क्वेश्चन है b cos theta plus b sin theta is 4 and a sin theta minus b cos theta is 3. Then a square plus b square. तो बहुत ही इजी है ये, इसको तो आप सीधे सीधे ऐड कर दो या दोनों को. तो फर्स्ट हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. लेट मी मेक माय पेन स्लाइटली डार्कर. ओके, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट. प्लस, और इसमें आप देखिए जो माइनस कंपोनेंट आएगा वो राइट वो डिलीट हो जाएगा, बिकॉज दैट विल बी सेम. यहाँ 2ab cos थीटा sin थीटा आएगा, यहाँ माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा आएगा. तो दूसरा होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इसका प्लस आएगा 2ab cos थीटा sin थीटा, और इसका आएगा माइनस 2ab cos theta sin theta, right? This gets adjusted, and this is equal to 3 square plus 4 square, which is 16 plus 9, that is 25. और ये क्या हो गया? a square cos square theta a square sin square theta, तो ये हो गया a square, because sin square theta plus cos square theta is 1, right? और दूसरा है b square sin square theta and b square cos square theta, वही 1 हो गया. sin square theta plus cos square theta, तो क्या आ गया? a square plus b square is 25. तो a plus b is ओके, a प्लस बी नहीं, यही बताना है. नेक्स्ट इज, ये तो बहुत ही इजी है, थर्ड क्वेश्चन. या ओके, ओके, थर्ड क्वेश्चन इज गिवन d इज इक्वल टू दिस एंड e इज इक्वल टू दिस. तो d का बताना है आपको. दो मैट्राइसेस आपको दी हुई है, तो आप देखिए d इज ए 3/2 मैट्राइस एंड e इज ए 2/1 मैट्राइस. m क्रॉस n होता है ना, राइट? तो d इज इक्वल टू p, तो फिर p का क्या होगा? m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p. अगर मैट्राइसेस हैं तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्राइस होता है दैट इज m क्रॉस p, राइट. यहाँ m क्या हो गया? 3 और p क्या हो गया? 1, so 3 क्रॉस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, while computing the mean of the group data we assure that the frequencies are mean of the group data, assume that the frequencies are centered at the upper limits, class marks evenly distributed while the centered at the lower limit. So class marks is the right answer.
ओके, नेक्स्ट इज पॉजिटिव रूट ऑफ 3x² प्लस 6 रूट इज 9। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5। ओके, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका जो स्क्रीनशॉट है। तो जब आप आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। आई विल पुट इट ऑन ड्राइव एंड पुट इट इन डिस्क्रिप्शन। ओके, द लिंक, so you can see the detail also. So which form of the AP 113 108 103 is the first negative term? तो आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए A is first term is equal to 113 and D is -5, right? It is reducing, correct? So which term is, so that we have to find out. So you figure it out and you get n is equal to 23. So 24th term होगा। द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आप जीरो ले लो। जीरो के नीचे जो नंबर्स होंगे नेगेटिव होंगे, तो लेट्स प्रिज्यूम जीरो इज अ नंबर, ओके, विच इज nth टर्म। तो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो इनकी वैल्यू आती है 118/5 समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स उससे अगला वाला टर्म जो है 24th टर्म वो नेगेटिव होगा, बिकॉज आप नेगेटिव से शुरू करेंगे। तो ये मान लीजिए जीरो है, तो ये नेगेटिव शुरू करेंगे एंड द AP is declining। तो यहाँ से शुरू हुई है तो इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। ये प्लस x हो गया, ये जीरो प्लस हो गया रादर, ओके, ये जीरो माइनस। और नेक्स्ट इज PQ is a tangent to a circle with center O। तो किधर है सेंटर O, ये रहा। एंड OPQ is a isosceles triangle। If OPQ is an isosceles triangle means क्या हुआ, OP is equal to QP, right? If OP is equal to QP and ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, tangent meets at an angle of 90 degree with the center. If this is 90 and they are isosceles means the other angles are 45, 45, correct? So 45 is the answer. Is that clear? ये देखिए टेंजेंट है, ये सेंटर से 90 डिग्री पे मीट करती है, और मान लीजिए ये आर्म और ये आर्म बराबर है, तो ऑब्वियसली ये 45 हुआ और ये भी 45 हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, राइट। नेक्स्ट इज रेशियो वॉल्यूम ऑफ ए कोन एंड सिलेंडर ऑफ इक्वल डायमीटर एंड इक्वल हाइट इज, क्या लिखा है इसने, ओके, रेशियो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 3/2 पाई स्क्वायर h। ऐसा इसने किया है, दिस इज माय स्टूडेंट, ओके। एंड देन सिलेंडर इज पाई स्क्वायर h, तो ये आ गया आपका 3:1, ओके। 3/2 होता है, आई एम नॉट टू श्योर, आई हैव टू चेक। If the height and length of the shadow of a man are the same, then the angle of elevation, बहुत ही इजी है। ये देखिए बंदा है और ये सन है यहाँ पर, ओके, सो उसकी शैडो हो गई है, राइट। So if this height h and this say presuming this is also h, so what is the elevation of the sun? This is theta, so tan theta is h over h, which is 1, which happens only in case of 45 degrees. So theta is 45 degrees, right? The fourth vertex D of a parallelogram whose three vertices are this and this and this, okay. So what we'll do is we'll draw this, okay. So easy to presume. So this is 1 and 2, this is -2 and 3 is 1, 2, 3, okay. So this is your A and B is 6, 7, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 and somewhere here is B, okay. And C, so C is 8, 3, C is 8 and 3. इसके और भी कई तरीके हैं, आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, राइट। तो आपको A मिल गया, B मिल गया, ये आपका -2, 3, B 6, 7, 8, 3, तो ये ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा, राइट। तो फिगर आउट कर लीजिए, राइट। AD विल बी इक्वल टू BC, करेक्ट। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर लीजिए, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, या आप D को प्रिज्यूम कर लीजिए xy, फिर आप DC इज इक्वल टू AB कर लीजिए, या BC इज इक्वल टू AD कर लीजिए। You'll find two equations and those two equations you can solve, right? So 0 - 1, I think this student has done it right, because it has to be on the -y axis somewhere. So this looks to be the perfect
assumption. I'm not getting into doing it. Yeah, so which one of the following cannot be the probability of an event? The probability of an event, देखिए आप किसी भी चीज़ की मैक्सिमम probability होती है 100%. ओके, उससे ज़्यादा तो चांस होता नहीं है. probability मीन्स चांस और 1. तो अब 1 से ऊपर क्या आया? 69% can be 0.69, 6/9, that is also less than 1. 69 is the number, so 69 cannot be the probability of an event. So angle between lines x minus y is equal to 0, x plus y is equal to 0. So x is equal to y. Okay, so m1 आपको मिल गया 1 यहाँ पर. y is equal to minus x दूसरी इक्वेशन से. तो आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? आपको पता है y is equal to mx plus c होती है स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन wherein m is the slope. तो m2 आ गया -1, m1 m2 is equal to -1. That happens only when there is a 90-degree angle. So two lines meeting at 90-degree angle will have their slopes defined in a way that m1 m2 is equal to -1. The slopes multiply to become -1. If a polynomial fx is divided by x plus b, then what will be the remainder? Divided by ax plus b means I can put x is equal to minus b by a. Okay, that means उसका factor है या और नहीं भी है. Okay, तो ax plus b is equal to 0 presume करके आप ले लीजिए x is equal to minus b by a. So if a polynomial is divided, so that is putting this value minus b by a in the polynomial, which is f minus b by a. A should not be equal to 0 because in that case x becomes undefined. Okay. If a is 0, x is not defined. It's a discontinuous function. So f minus b by a is the answer. Yeah. Moving on to question 14. Okay. So here we have this two numbers minus root 48 minus root 23 and minus root 48 plus root 23. तो इनका मीन proportion हमें find करना है. Now you know what is the property of mean proportion? Mean proportion presuming A, B, C are in a ratio. Okay, then A by B is B by C. So B is the mean ratio. So B square is AC. So if you see B square is equal to AC, so B is equal to root AC, root of root 48 minus root 23 and root 48 plus root 23 will be root of a minus b plus a into a plus b, which is root a square minus b square. Okay, तो a square यहाँ पर हो जाएगा 48 और b square हो जाएगा 23, तो ये आ जाएगा root of 25. तो उनका मीन रेशियो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5. ओके, now next one, slope of a line is 1. Okay, so if slope of a line is 1 means line is at 45 degree. Okay, tan theta is 45. So assertion is if x intercept and y intercept are equal, there is actually both are 0. Yeah, there is no x intercept, the line will pass through origin. Okay, because x is equal to y is the equation of the line, right? Now next is it makes an isosceles triangle with the coordinate axis. Yes, if you actually take any point, if you connect any points on this line with x and y axis, so basically x is equal to y. So it makes an isosceles triangle with the coordinate axis. So this is wrong, this is right. A is false, R is true. Now moving to question 2. Question 2 says a shopkeeper buys a certain number of books for rupees 960. Okay. If the cost per book was rupees, I'll clean this up. Okay. राइट, ये हमने यहाँ कर दिया. तो यहाँ हमारे पास स्पेस है. वी नीड स्पेस टू डू दीज क्वेश्चंस. हाँ, so give me a moment. Yeah, so if a shopkeeper buys a certain number of books for rupees 960, the cost per book was rupees 8 less, the number of books that could be bought for rupees 960 would be 404 more. So find the original cost of the book. So presuming the original cost of the book is rupees x. राइट, तो 960 में कितनी बुक्स आती हैं? 960 by x. राइट, और अगर कॉस्ट ऑफ बुक्स कम हो विच इज 960 by x minus 8, then this is bigger than, or rather I'll put a minus sign. ओके, माइनस साइन लगाया और उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया. ओके, 960 x minus 8, तो 960 by x is equal to how much?
4 मोर, तब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो या फिर तो आप इसको 1/x - 8 - 1/x, आपको पता है कैसे करते हैं। दैट विल बिकम x - x + 8 into 960 is equal to 4 into x - 8, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो गया 8 into 960, ये 4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2, 4 2 जा 2 into 960 is x - 8, right? That is x square minus 8x minus 2 into 960 is equal to 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज एक्चुअली 848। या ये हमें आंसर हमें पता है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक को। b square minus 4ac/2ac। नेक्स्ट इज Neera saves rupees 600 during first year, rupees 2100 in second year, rupees 2600 in third year. If she continues her savings in this pattern, how many years will she save 38,500? Right, अब question, let me see. We have done somewhere. No. हाँ, ये दिया है क्या? ये देखिए, A is equal to 1600 in first year, 2100 in the second year। तो देखिए फर्स्ट टर्म एक AP का क्वेश्चन है, राइट। तो AP क्वेश्चन मीन्स क्या होगा, फर्स्ट ईयर में उसने 600 सेव किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 2100, फिर 2600, तो AP बन गई ना 1600, 2100, 2600 एंड सो ऑन, राइट। तो उसका कॉमन डेविएशन आ गया 500, फर्स्ट टर्म आ गया ये, और आपको कितना चाहिए 38,500 चाहिए, तो दैट बिकम्स अ समेशन। तो ये क्या हो गया, समेशन हो गया। एस इज इक्वल टू n/t 2a + n - 1d का फार्मूला लगाएंगे और ये वैल्यू लगाएंगे और आपका n का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी फाइनली, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आया आंसर 5n + 77 n - 10। नाउ n कैनॉट बी माइनस, राइट। तो एक ऑप्शन आया n इक्वल टू -77/5, दूसरा आया 10। So the correct option is the one which is positive. So in 10 years, Neera will save this much money. Right? This was question number. I'll share the sheet with you. इसे Google Drive पर डालकर I'll share with you, so you can see, how the solution was worked out. So this is कितने easy questions हैं, है ना? Okay, now third, second. With the help of a graph paper, taking 2 centimeters or 1 unit, we're going to plot the following points. अभी हमने ऊपर कहीं प्लॉट किए हैं, ये देखिए। तो पॉइंट आपने प्लॉट किए, आप इसे ग्राफ पेपर पर करिए। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लीजिए, मैंने यहाँ लिया हुआ 0 1 2 3, ओके। फिर प्लॉट किए हुए हैं पॉइंट्स। तो a 0 - 4, तो ये आपका a हो गया। 0 - 4 मीन्स y एक्सिस पे आएगा। b इज 1 - 2, तो b a आ गया, b 1 - 2, राइट। एंड c इज 3 - 2, c किधर है, c 3 - 2 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया d 1.5 and 1, d 1.5 and 1। अभी कह रहा है रिफ्लेक्ट पॉइंट BCD इन द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। ना ये ट्रिक था इस पूरे क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है, राइट। तो y एक्सिस पे आप देखिए सारे पॉइंट्स का x 0 होता है। तो x इज इक्वल टू 0 में रिफ्लेक्ट करना है, मतलब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। और अगर y इज इक्वल टू 0 दिया हो मतलब क्या होता है, x एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, ओके। और x इज इक्वल टू वाई दिया मतलब 45 डिग्री एंगल पे लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन। एनीवे, इसमें हमने रिफ्लेक्ट किया तो d का d डैश हो गया, c डैश हो गया, b डैश हो गया और a का कोई a डैश होगा ही नहीं, बिकॉज a इज ऑलरेडी ऑन द y एक्सिस। तो a डैश विल बी सेम, राइट। हाँ, अभी इन सबको कनेक्ट किया तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या होता है, हेप्टोग्राम होता है, हेप्टाग्राम या heptagon, yeah. So that is the figure which is found. Name and coordinate invariant point A. तो ये हो गया, ये invariant point A है because A will reflect at its own position. Join the points and set the coordinate of the closed figure is heptagon. Hepta 7 number को close the area of the क्लोज फिगर। तो उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है, राइट। आप इतने ट्राइंगल्स ले लीजिए और उस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपका एक ट्राइंगल हो गया, एक आपका एक ट्राइंगल हो गया,
ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, राइट। सबको ऐड कर दीजिए, एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, in the given figure PM is tangent to the circle at point M. Very good. So PM is the tangent. If PA is equal to PM, then prove triangle PMB is an isosceles triangle. So आपको prove करना PMB is an isosceles triangle. दूसरा क्या prove using the concept of similarity, PA into PB is MB square. Okay, very good. Now next, this we have done here. So we'll come to this point. इधर ले जाते हैं इसको और यहाँ से ही देखते हैं। तो इन ट्राइंगल PAM देखिए, इन ट्राइंगल PAM इधर ही रखते हैं, अदरवाइज यू नो दिस विल, हाँ, इन ट्राइंगल PAM व्हाट इज हैपनिंग? In triangle PAM, APM is equal to AMP, APM is equal to this angle is equal to this angle. So PA is equal to AM, this was given. Now that means angle APM is equal to AMP. वही बात बार बार लिखी है. So PM is equal to MB, right? Now next, angle ABM is equal to AMP, ABM is equal to AMP, because एक प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट सेकेंड से जिस एंगल पे मिलता है दैट इज इक्वल टू द एंगल मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्कल. ओके, एक थ्योरम है. इफ यू कनेक्ट अ टेंजेंट विद द सेकेंड, ओके, हियर, so this angle will be equal to angle made on the other side of the circle. Okay, so this angle is equal to this angle, right? Correct. ये सारे एंगल जो है इक्वल निकल रहे हैं अब. Okay, now if this angle is equal to this angle, that means what? And this angle is equal to this angle, so this is equal to this is equal to this. अब तक कितना आ गया? So PM is equal to MB, because if angle MPB is equal to angle MBP, that means PM is equal to MB, and that is equal to, and PA is equal to AM. दो चीजें establish हो गई हैं. Hence triangle AMP is an isosceles triangle. Okay, AMP is an isosceles triangle. Next, by rectangle property of tangent and chord, PM square is equal to PA into PB. एक property थी, PM square is equal to PA into PB. Okay, that is the property. Now here if you see, MB square is equal to PA into PB. So PA square is equal to PM square is equal to MB square, right? Because PM is equal to MB. So वो property use करके MB square is equal to PA into PB. MB square is equal to PA into PB. MB square is equal to, यहाँ लिखते हैं, इससे अच्छा कर ही देते इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते तो अच्छा रहता. MB square is equal to, because MB square is equal to PM square. PM square is equal to PA into PB एक प्रॉपर्टी होती है, राइट? अब क्या है ये थ्योरम? So but PM is equal to MB because this angle is equal to this angle, right? Is equal to PA into PB, but PB is what? PA into PB is MB square. यही प्रूव करना था हमें, तो वो प्रूव हो गया. Okay, these two lines were equal to this angle. This angle is equal to this angle. This you know why? Because अगर आप ये सेंटर पे आप O ले तो this angle is equal to this angle, presuming X. This is also X because ये दोनों रेडाई है, OA और OB, राइट? मान लीजिए OB रेडाई X X है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 180 minus 2X इन द ट्राइंगल OAB, तो हो गया 180 minus 2X. तो ये क्या हो गया? ये उसका हाफ हो गया 180 minus 2X का, which is 90 minus X. तो ये X था, तो ये क्या था एंगल? दिस वाज 90 minus X. तो आप देखिए प्रूव कर दिया, ये जो एंगल है इसके बराबर होता है, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल PMA वाज इक्वल टू एंगल MBP. Okay, now next, कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. ये तो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, देखिए. अब आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए 5 सेंटीमीटर्स का, देन उसका आप वहां से एक ये 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करिए.
Because hexagon means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon means all the internal angles will be 120 each. Right? Why? Because this angle is 60 degree. All the external angles sum is 360. Okay, this angle will be 60. Similarly, so all the internal angles will be, because they are equal arms, so it will be 120, 120. तो 120 यहाँ पर ड्रॉ करिए. ओके, और उसके बाद आप इसका यहाँ से 6 सेंटीमीटर लीजिए, जो भी लेंथ दी हुई है उसकी आर्म की, और ये आपने ड्रॉ की. इन दोनों का आप वो खींचिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड द सेंटर विल बी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. रीजन बीइंग सेंटर इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस इन हेक्सागन. तो आप देखिए आ गया. Similarly, you keep going and draw other, so that's how you will draw the hexagon. Now next question is question 5. Okay, some more. Yeah. Okay, which is a better investment? 16% of rupees 100 shares at 80, or 20% of 200 shares at 120. अब देखिए आपको 18% और 100 shares of 80 पे कितना आपको रिटर्न मिलेगा? That will be 20 by 120 is rupees 0.17, and 16% of rupees 100 shares at 80% is better investment. This you have to work out using standard formulas, right? So this you do on your own. And next one is, ये हो गया 40 students participated, ये रह गया short put. Okay, here it is. ये रहा. Okay, क्लास इंटरवल ले लिया. ओके, so this is another question. ये मीन निकाला है. Okay, what is this? 40 students participated in shot put competition. Distance thrown in meters is recorded below. Use a graph paper to draw an ogive for the distribution. Use a scale of 2 centimeters 1 meter. Okay, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ, और फिर आपको ओगाइव बनाना पड़ेगा. आप क्लास इंटरवल्स लीजिए, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीजिए, और उसके बाद यू कनेक्ट द middle of the class interval, or the middle point to each other, until arrive at an ogive. This is, a very standard kind of question. Now I don't have a solution here, so I can't really draw a graph. It will take a lot of time. Now next is, in triangle ABC, angle ABC is DAC. ABC is equal to DAC. These two angles are equal. AB is equal to 8 centimeter. Okay, very good. AC is equal to 4 centimeter, and AD is equal to 5 centimeter. Prove that triangle ACD is similar to triangle BCA. ACD is similar to triangle BCA. देखिए एक तो एंगल ये कॉमन हो गया, राइट? ये एंगल आपको कॉमन मिल गया. सी एंगल कॉमन हो गया बिटवीन ट्रायंगल एसीडी एंड बीसीए. एंगल सी इज कॉमन, राइट? एंड एक एंगल ये बराबर है, दिस एंगल, दिस इज ऑफ एंगल ट्रायंगल एसीडी. सो ट्रायंगल सीडी CAD is equal to angle ADC. So if two angles are common, two angles are same, the third angle is 180 minus sum of other two angles. So third angle also has to be same. That means this angle will be equal to this angle. This is equal to this. This is common, so this angle will become this angle. So angle ADC will be equal to angle CAB. Yeah. ये क्या लेगा? CAD is equal to ABC. So all three angles are same, so that means they are similar. Find the length of BC and CD. अब आप देखिए BC and CD की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वर्टेक्स मैपिंग करेंगे. ओके, तो आप देखिए B is opposite to AC. ओके, and here that means that has angles
CDB एंड ACB। यहाँ पर देखिए CDB और ACB के सामने कौन सा है? ABC एंड CDB। हाँ, उसके अगेंस्ट में आप वर्टेक्स मैपिंग करके आपको 3 आर्म्स दी हुई है और आप बाकी निकाल लीजिए। ओके, एरिया ऑफ ACD एंड ABC इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्म्स। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, so if you see this question, part 3, question 4, the tangents TA and TV are drawn to the circle. Okay, now if you see, we'll take this. T and TV are drawn to the circle. So now you know if you draw two tangents from one point, they are equal, in length. So TA will be equal to TB, right? The diameter BC and tangent A when produced meet at D given ATB is 50. तो ये आपको दिया हुआ है एंगल 50 डिग्री, राइट? तो ये 50 है और ये दोनों आर्म्स बराबर है, TA इज इक्वल टू TB। तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस बन गया तो 180 माइनस 50/2 दैट इज इक्वल टू 65। तो ये एंगल हो गया 65 डिग्री, ये एंगल हो गया 65 डिग्री। आप देखिए BC डायमीटर है, राइट? अगर डायमीटर BC है तो 3 प्रॉपर्टी निकल आई। एक तो सेंटर इसमें किसी पॉइंट पर होगा, और डायमीटर मतलब सेंटर से जो रेडियाई आती है वो टेंजेंट से 90 डिग्री पे मीट करती है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है और ये 65 है तो जो बचा हुआ एंगल है दैट इज y, दैट इज इक्वल टू y is equal to 19 minus 65, that is 65 to 570 and 20, that is 25। तो एक तो एंगल मिल गया। अब आपको पता है यहाँ पर भी TD जो है वो टेंजेंट है TAD, राइट? तो AD टेंजेंट है, राइट? और ये आपका ये एंगल 65 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? ओके, नाउ दिस इज 65, वन थिंग इज डन, दिस 65, राइट? नाउ लेट मी सी what else is the okay, now you know that angle BCCAB ये हो गया एंगल इन डायमीटर। एंगल इन डायमीटर हमेशा 90 होता है, तो ये 90 हो गया। अब आप देखिए एंगल TAD इज इक्वल टू 65 प्लस 90 प्लस x, और एंगल TAD क्या है? एंगल TAD स्ट्रेट लाइन है, राइट? तो आपको x भी मिल गया। x क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 65 90 कितना हुआ? 90 60 150 155 155 माइनस 180 और 25 डिग्री, ये भी हो गया। ये लीजिए x भी मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन, फ्री के 4 मार्क्स हैं ये, राइट? तो y मिल गया, x मिल गया। अभी क्या बचा? अभी आपका ये z बचा, एंगल ADC। अब इसको निकालने के लिए आप देखिए ये 90 है और ये एंगल क्या है? ये y है, y मतलब 25। तो ये एंगल क्या हो गया? 180 माइनस 90 माइनस 25। बाकी जो एंगल्स पता है इस ट्रायंगल के, राइट? तो 90 प्लस 25 कितना होता है? 90 25 इज 115। ये 90 25, तो तीसरा एंगल इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं। ओके, ट्रायंगल ABC में ये आपका एंगल क्या हो गया? एंगल ACB इज इक्वल टू ये, विच इज इक्वल टू 180 में 115 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 65 65। अब आप देखिए ये जो एंगल है ACB ये एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल ADC का, राइट? तो ट्रायंगल ADC का एक्सटर्नल एंगल है, वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल ACB इज एक्सटर्नल एंगल दैट शुड बी सम ऑफ एंगल A which is angle CAD, or I could have written angle A. Wait, let me clean it up. Angle which is equal to angle CAD plus angle, दूसरा एंगल कौन सा? ADC। CAD क्या है? 25। तो आपको निकालना क्या है? एंगल Z निकालना है। तो एंगल Z ये है बचा हुआ है, इक्वल टू 65। तो एंगल Z क्या हो गया? 40 हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इजी। या अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
दैट सेज, ये आप इग्नोर करिए, टावर वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ किया है, ये मैंने नीचे भी किया है, ये अपना पेयर टाइप से अगले किया है। करेक्ट, नीचे कहीं, ओके। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर्स। ओके, तो डायग्राम चाहे यही देख लीजिए, सोल्यूशन आगे देख। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है बिटवीन टू टावर्स, या दैट इज 140 मीटर्स, राइट। तो ये डायग्राम बना है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 140 मीटर्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड फ्लोर इज 30 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो ये देखिए पैरेलल लाइन हुई ना, तो ये एंगल भी हो गया 30 डिग्री। दूसरा क्या है, हाइट दी हुई है फर्स्ट टावर की 60 मीटर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सेकंड टावर की हाइट पता करनी है। तो ये 60, तो ये भी 60 हो गया। यहाँ से हमने x प्रिज्यूम कर ली, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका एक मैंने पेयर किया हुआ, आगे दिखाता हूँ आपको। ये आ गया, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर ए बी इज 60 h, देन बी डी इज 140 मीटर। सी एम, ये पूरा आपको मैं ये गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, यू नो कि कैसे करेंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस इमेज फाइल का, है ना, यू कैन चेक इट देयर। अदरवाइज यू नो फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ द क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब देखिए 1 x इक्वल टू 140 बाई x by 140 is 1030, right? So 1 by root 3 is x by 140, so x is 140 root 3, तो ये हो गया 140 root 3 प्लस 60 इसमें ऐड कर लेंगे, राइट। तो वो आपका टावर आ जाएगी, राइट। नहीं, 140 बाई रूट 3, तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 डिवाइड करेंगे तो आएगा 80 के करीब आएगा, 70-80। तो 70-80 प्लस 60 अराउंड 140 मीटर, ही इसकी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्क प्राइस दिया और क्वांटिटी डिस्काउंट रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी हमेशा यू नो जिस प्राइस पे आपने सेल किया उस पे लगता है, मार्क प्राइस पे नहीं लगता है। तो आप डिस्काउंट पहले सब्ट्रैक्ट करते हो। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द अबव बिल। अब आप देखिए, मैं देखता हूँ मैंने नीचे किया है क्या कहीं, हाँ लेट मी सी, यहाँ कहीं, यहाँ भी नहीं है। वो आप खुद कर लो, उसमें कुछ है नहीं। ओके, राइट, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं। आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे आइटम का आपका मार्क प्राइस यहाँ 40 है। आई टेक द पेन अगेन एंड देन आई राइट मार्क प्राइस आपको दिया है, आप ले लीजिए। सॉरी, मार्क प्राइस 40 है और डिस्काउंट है आपका 10%, क्वांटिटी 2 है, तो आप लगाइए डिस्काउंट 10%, तो 36,000 का हुआ टीवी से, राइट। और 2 क्वांटिटीज मीन्स टोटल 72,000 हुआ। 70,000 पे आप जीएसटी लगा दीजिए 28%, 28%। नेक्स्ट स्पीकर है 5,000 का, क्वांटिटी है 1, डिस्काउंट है 5%, स्पीकर का डिस्काउंटेड प्राइस निकालिए, राइट। दैट विल बी 5%, 5,000 विल बी बाई 20, 20, 250, 250, तो 4750 हुआ। ये 4750 इंटू 1, और उस पर आप 18% जीएसटी निकालिए और दोनों का ऐड कर दीजिए। दैट इज हाउ सिंपल इट इज। अब हम आएंगे इस पर मीन वाले क्वेश्चन पर। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये भी बहुत ही इजी है, एप्लीकेशन है, फार्मूलाज है, तो आपको मीन के फार्मूले आपको पता होंगे, राइट। ये दिया हुआ है, ये आपका क्लास इंटरवल आ गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई एक्स वाई में, फिर मिड वैल्यू निकाल ली क्लास की 10, 30, 50, 70, 90, उसका हमने निकाल लिया यू आई एक्स वाई माइनस ए बाई एच। तो आपने एज्यूम्ड मीन माना ए, राइट, और एज्यूम्ड मीन मान के आपने फिर उसके बाद उसका आपने क्लास हाइट से डिवाइड करके यहाँ पे डेविएशन निकाल लिया, और उस डेविएशन को फिर आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। देन n इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, दैट इज 120, तो दैट मीन 68 प्लस एक्स प्लस वाई इज 120। ये दिया हुआ है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई। फिर आपने मीन का फार्मूला लगाया ए प्लस 1/n सिग्मा एफ आई यू आई एच। ओके, तो आपको वहां से एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गई। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बननी चाहिए, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए का सम क्या होगा? दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ओके। हाँ 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 हाँ। साइन ए प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला लगाया है यहाँ। एंड ले लेता हूँ। ओके, नाउ यू नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह से आएगा और वन हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है, दोनों का सम, राइट। तो आप इस तरह से लगाइए तो आपको मिल गया साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये साइन ए कॉस ए से नीचे वाला साइन ए कॉस ए चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए आएगा, नीचे भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो वो जाएगा। तो क्या बचेगा? ये दो बचेंगे, एक ये बचेगा एक ये बचेगा। अब आप वैसे भी देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, तो वन माइनस साइन ए कॉस ए, ये आ गया वन प्लस साइन ए कॉस ए, राइट। तो यही तो बचा आपको। तो क्या हुआ दोनों का सम? दैट इज वन प्लस वन। ये आपका एडजस्ट हो गया दोनों। तो आपको क्या मिल गया? टू, विच इज सो वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी मार्क्स यू अर्न? फ्री, 3 marks. नेक्स्ट इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस, क्या क्वेश्चन है? लेट मी सी। सॉल्व एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 18 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। तो बहुत ही इजी है इसका, तो आप क्वाड्रेटिक बना के कर लीजिए। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स, राइट। तो उसके बाद आप क्वाड्रेटिक बनाइए और कर लीजिए, राइट। ये कटा हुआ है स्क्वायर शायद, आई थिंक। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 6 एक्स। एलसीएम लेके, राइट, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 18। अब आप 18 के फैक्टर निकालिए जो जिनका सम 6 हो। तो क्या फैक्टर होते हैं? 9 एंड 2 होते हैं, 3 एंड 6 इंटू 3 इज 18, राइट अगेन। और आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए, माइनस माइनस बी प्लस माइनस 20 का माइनस 4 AC बाई 2 है। तो क्या आ जाएगा? माइनस बी विल बिकम 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर विल बी 36 माइनस 18। ये क्या हुआ था? माइनस 18, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 72, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना है भाई। 2 इंटू ए इज 2, दैट इज 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 72 प्लस 36 इज 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो 36 इंटू 36, तो 6 बाहर आ गया, राइट। दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 2, 1 प्लस 2 6 रूट 3 हो गया। तो रूट 3 क्या होता है? रूट 3 होता है 1.732, राइट, बाई 2। तब आप निकाल लीजिए, राइट। 6 प्लस माइनस 6 रूट 3 बाई 2 आ गया, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस, सो दिस यू डू योरसेल्फ। इसमें आपको एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्म दी हुई है, राइट। आपको क्यू आर और पी क्यू दिया हुआ है, तो बहुत ही ईजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ईजी है। ओके, पी क्यू आर में मैंने क्यू आर ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद पी क्यू आर मेरे पास है, तो देखिए क्यू अगर मैं यहाँ लूँ तो पी क्यू आर इधर आ गया 60 डिग्री, यहाँ गई पी है, फिर मैंने चॉप कर लिया 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू आर हो गया। क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट द लोकल पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। लोकल पॉइंट 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी विल बी a circle because they will be all equidistant, right? Consider the point equidistance from QR and PR. QR and PR, that will be centroid actually. Equidistant from both, okay? That will be centroid because ये इसको बाइसेक्टर निकाल लेंगे, इसका लेंथ बाइसेक्टर, इसका भी बाइसेक्टर निकाल लेंगे। बाइसेक्टर्स मीट एट अ पॉइंट फ्रॉम विच यू कैन इंस्क्राइब a circle, okay? Measure the straight line length one. चलो, next is jar contains 24 marbles, some are green। ये मैंने किया हुआ है इधर। कहाँ है मार्बल्स?
ओके, हाँ ये देख, टोटल नंबर ऑफ marbles is 24. Let there be X green marbles. Now question says jar contains 24 marbles. Some are green and some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, find the number of blue marbles in the jar. Probability दी हुई. So total marbles is 24. Let there be X green marbles. So obviously blue are 24 minus 6. So probability of getting a green marble is X by 24. Okay, so X by 24 is equal to 2 by 3. You will find value of it. So green marble 16, blue marbles whatever is left is blue. Right? A vessel is in the form of an inverted cone. उसमें आ जाते हैं. तो बहुत ही easy. Vessel in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. Radius of its top, which is open, is 5 centimeters. Filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius, this is dropped into the vessel. 1/4 of the water flow. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं. वेसल का एक फिक्स वॉल्यूम है, तो जब उसमें लेड शॉट डालेंगे एंड वेसल इज फिल्ड अप टू द टॉप, तो जो वॉल्यूम है लेड शॉट का उतना वाटर निकल जाएगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग. व्हेन द ऑब्जेक्ट सिंक्स, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस वुड बी सेम एज आई मीन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. तो अगर 1/4 पर आप क्या करिए, पूरे वेसल का वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद आप लेड शॉट जो है उसका वॉल्यूम निकालिए. ओके, और 1/4 उसका करके नंबर ऑफ शॉट्स निकाल लीजिए. देखिए मैंने किया है यहाँ. सो हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल इज दिस. रेडियस दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ द कौन मिल जाएगा आपको 1/3 पायर स्क्वायर एस से. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम. वो हमें यहाँ से मिल गया. हमारे पास रेडियस ऑफ द लेड शॉट दी हुई. वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. राइट, तो आपको ये मिल गया. यहाँ से आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालना है. वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट. आंसर इज 100. नेक्स्ट क्या, यूजिंग प्रोपोर्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व दिस. 1 plus x plus x square by 1 minus x plus x square equal to 62. 1 plus x 63 1 minus. Now this is fairly easy compared to what it looks like. तो हमारे पास ये दिया हुआ 1 plus x this into 62 by 63. राइट, अब हमने क्या किया, ये आप देखिए a प्लस बी है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये a माइनस बी है. उससे कंपेयर करिए आप, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है साइन कॉज वाला, राइट, वहां भी यही प्रॉपर्टी यूज की थी. आई डोंट नो, आई थिंक दिस स्कूल लव्स दिस फार्मूला. ओके, सो वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, and a minus b into a square plus b square plus ab is equal to a cube minus b cube. तो आप देखिए ऊपर आ गया a क्यूब और नीचे आ a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब. अभी आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, राइट, करेक्ट. तो वो क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो. इफ a by b is equal to c by d, then a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. राइट, दिस इज योर कंपोनेंट डिविडेंडो इन द बुक. तो आप भी लगा दीजिए और आपको सिंपल 2x³ मिल गया. यहाँ से आपको x³ की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, वंस यू नो दैट x³ इज इक्वल टू 125, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5. व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 125? दैट इज 5 into 5 into 5, राइट. सो क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5. ओके, क्वेश्चन डन. नेक्स्ट है मैन इन वेस्ट साइड. ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इसमें आप दो इक्वेशन बना लीजिए. एक तो आप इससे बना लीजिए. आई थिंक दिस इज नॉट सॉल्व्ड एनीवेयर. ओके, दिस विल डू. ये आपको दो इक्वेशन यहाँ पे मिल गई. एक आपको फर्स्ट टू से ले लीजिए और दूसरी आप सेकंड टू से ले लीजिए, राइट. तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली, 3 minus 2x is greater than equal to by 3, राइट.
तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x प्लस 1/3। अब आप 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए, राइट, 2x है ये, ओके। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिली, दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिली, 1 माइनस एक्स बाई 3 इज ग्रेटर देन 2x बाई 5, तो आप इसको करिए 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6x बाई 5। तो इस x को इधर ले आइए, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन 6x/5 प्लस x, दैट इज 11x/5, राइट। सो दैट मीन्स x इज लेस देन 5/11, ओके। और यहाँ से आपको मिल जाएगा जो भी इक्वेशन मिले, राइट। ये हो गया 3x दैट इज 3x माइनस एक्स इज 2x प्लस 1/3, ओके। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 माइनस 2x, इस 2x को इधर ले आइए, राइट। तो 9 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x को इधर ले आइए तो हो जाएगा 8x, और 1 को इधर ले जाइए, दैट मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 2x plus 2x 4x. If 8 is greater than equal to 4x, that means 4 is greater than equal to x, right? तो ये आपको दो बाउंड्रीज मिल जाएंगी x की। नेक्स्ट, Shruti opened the recurring deposit account in a bank and deposited she received this at the time of maturity, find the rate of interest। तो सीधा सीधा फार्मूला आई थिंक रिकरिंग का जो यहाँ पर यूज होगा। हाँ, ये कहाँ किया है मैंने, ये भी किया हुआ है, these are standard solutions, okay। Yeah, even monthly deposit is P is equal to 800, N is equal to 3/2 into 12 months is 18 months, maturity value is 15084। और आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, maturity value is P into N plus P into NN plus 1/2 into 12 into R by 100। बस ये लगाया इन्होंने और इन्हें R मिल गया, R is equal to 6%, right। This file I'll share with you in description, I'll put a link, okay। Next is a man invests rupees 22,000. A man invests rupees 22,000 in 50 shares, rupees 50 shares available at 10% discount। तो 50 share coming at 10% discount means 45 rupees का शेयर था। If the dividend paid by the company is 12%, तो आप निकाल लो कितने शेयर आए, 22,500, 22,500 में कितने शेयर आए होंगे, फिर आप उस पर 12% रिटर्न काउंट कर लिया। ये देखिए, ये है total investment 20,000, face value of the share 50 rupees, market value of share is 50 minus 10% of 50, 45 rupees, number of shares purchased 500, annual dividend per share is 12% of 50, okay, because annual dividend हमेशा face value पर मिलता है, that is 12/100 into 50, that is rupees 6, total annual dividend on 5,000 shares is 3,000, rate of return is 3,000 by total investment 22,500 into 100, 13.3%, okay। Now next, right, हाँ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन। या, गिवन a is equal to this and b is equal to this such that ax is equal to b, so you have to find the order of the matrix x, the matrix x, very easy, order तो बहुत easy है। ये कौन सी 2/2 मैट्रिक्स है और ये क्या है, b is equal to 2 into 1, राइट। तो m into n into n into p is m into p, तो आपको m भी पता है, p भी पता है, वहां से आप n निकाल लीजिए, राइट। ये देखिए 2:1 होगा उसका आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स निकाल लीजिए आप, नीचे किया है क्या कि नहीं, लेट मी सी, ओके। तो दो तरीके मैट्रिक्स निकालने के, वंस यू नो द ऑर्डर आप एज्यूम कर लीजिए नंबर्स, ओके, एंड देन आप इक्वलाइज करके उसको मल्टीप्लाई करके आप रो टू रो कॉलम टू कॉलम मैच करके उसकी वैल्यूज निकाल लीजिए assumed variables की, right। Next is model of a ship is made to scale 1:300, length of the model is 1.5 meter, calculate length of the ship। अब आप देखिए length is a single this thing, so you'll multiply with the scale directly, so it will be 1.5 into 300, area of the deck of the ship is, area के केस में you will have to square it, okay, so area is in square meter, find the area of the deck of the model। Now you know that ratio is 1:300, so we'll divide 3,60,000 over 300 into 300,
because whatever the model's length and breadth were, they would have been 300 times shorter than the actual shape. इसलिए इसको 300 into 300 डिवाइड करेंगे. इसी तरह वॉल्यूम का केस में क्या करेंगे, 300 into 300 into 300 से डिवाइड करेंगे. ओके, द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल. अब आपको मॉडल का वॉल्यूम दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ शिफ्ट. 250 into 300 into 300 into 300, that will be the thing. Now 1 ml is equal to 1 centimeter cube, 1 liter is equal to 1 meter cube. उस हिसाब से आप यहाँ लगा दीजिए प्रॉपर्टीज एंड दैट्स इट. Next, if 2x minus 3 is a factor of function 2x cube minus 9x square plus x plus p, find the value of p. So easy. If 2x minus 3 is a function, what will happen is it should satisfy the function. So if you put the value of 2x minus 3 is equal to 0, ये मैंने किया है, I'll show you. Okay. ये देखिए फंक्शन, इफ यू पुट x एस 3/2 तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस k. यहाँ इन्होंने k ले लिया है, p है शायद क्वेश्चन में, बड़े बात. दैट्स द कांस्टेंट दैट वी हैव टू फिगर आउट. So 2x minus 3 is a factor of fx. So fx has to be 0. Factor means there should be no remainder. Okay. So f 3/2 will be 0. So यहाँ हमने वैल्यूज रख दी और हमें k की वैल्यू मिल गई जो कांस्टेंट है. राइट, वेरी इजी. नेक्स्ट, that's it. That is the end of this paper. This was Goldcrest School VASHI's pre-board paper, and I've tried to put this together here in this video. I'll keep adding many more question papers from other ICSE schools. If you have your school's pre-board paper, please share with me in comments, and we can do that. Okay, and I'll upload this file on Google Drive and put a link in description. So I hope you enjoyed it. If you have some questions here, you can come back to me in comments and I'll be glad to answer. Wish you all the best. You have exams in February and I'm sure you will do great. Yeah? Thank you.